जो ना शेयर स्क्रीन इसको ऊपर लगना। Okay. Now we will start our next chapter. A truly beautiful mind. Can you recognize this picture? पहचान रहे हो इस पिक्चर को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन है ये? Albert Albert Einstein. Einstein. Albert Einstein. Very good. Now you can understand that this lesson is about the Albert Einstein. A truly beautiful mind. This chapter is about Albert Einstein, a great scientist. Moreover, this chapter is a short biography of it. In this in this chapter, some of his qualities are highlighted as Albert's interest in mathematics and physics and his ordinary human attributes. However, the title A Truly Beautiful Mind may let you wonder how a scientist's mind can be beautiful. तो ये जो हमारा लेसन है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। एक शॉर्ट बायोग्राफी है, अल्बर्ट आइंस्टीन की एक शॉर्ट बायोग्राफी है। इस चैप्टर में अल्बर्ट आइंस्टीन की कुछ क्वालिटीज को हाईलाइट किया गया है, जस्ट एज हिज इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स और हिज ह्यूमैनिटी. So we can say how the mind of a scientist can be very beautiful. In this lesson, we get to know about another aspect of his life, that he believes in humanity. Moreover, he advocates world peace, non-violence his entire life. That's why the title refers to him as a truly beautiful mind. His theories totally changed our understanding of space and time. He won the Nobel Prize for Physics in 1921. His theories are being proven correct today. So, he won the Nobel Prize for Physics in 1921. 1921 में उसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला है. उसकी जो थ्योरीज हैं वो आज इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इन द टुडे सिनेरियो इज ऑल्सो करेक्ट. आज की सिनेरियो में भी बिल्कुल सही साबित होती हैं. Before you read, let's start the lesson. Before start the lesson, we will read who do you think when you hear the word genius? जब आप genius word सुनते हो तो आपके दिमाग में कौन आता है? And who is genius? What qualities do you think a genius has? Genius कौन होता है और इसमें कौन कौन सी qualities होनी चाहिए? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm. Took the world by storm means became a sudden success. Suddenly he became successful. About 100 years ago, in the summer of 1905, the 26 years old published in quick succession 4 groundbreaking papers. Groundbreaking means totally new invention. He invented 4 new things, totally new things. He was the pioneer of 4 things. And what are 4 things? About light, the motion of particles, the electrodynamic of moving bodies, and the energy. These are 4 things which he has discovered. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos. What is the meaning of cosmos? ब्रह्मांड, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं. And transformed the name Einstein into a synonym for genius. और आइंस्टीन का जो नाम था उसको जीनियस का सिनोनिम बना दिया. आइंस्टीन है वो जीनियस का सिनोनिम बन गया. मीन he was declared as a genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. Reigns means ruling, शासन करना.
he after the death of, now you can say 70 years, but here is written 750 years. After the death of, after the 50 years of his death, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियसनेस इज स्टिल रूलिंग ओवर द वर्ल्ड। आज भी उसकी जीनियसनेस है, वो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रही है। उसके बराबर आज तक कोई जीनियस पर्सन फिर से कोई नहीं पैदा हुआ है, नहीं सामने आया है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली लाइफ ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन की जो अर्ली लाइफ थी, शुरू की जो लाइफ थी, वो इसमें है। Albert Einstein was born to German parents on 14th March 1879 in Ulm, Germany. He was born on 14th of March 1879 in Ulm, Germany. Germany के Ulm शहर में उसका जन्म हुआ था। His mother thought that he was abnormal child because his head was too large compared to other children. उसका जो सर था वो बाकी बच्चों की बजाय बहुत लार्ज था, बहुत बड़ा था। देन हिज मदर थॉट दैट ही वाज अबनॉर्मल, ही वाज फ्रीक, कि वो अबनॉर्मल है, फ्रीक है। ही स्टार्टेड स्पीकिंग दैट आल्सो विद डिफिकल्टी ओनली बाय द टाइम ही वाज 2.5 years old. He started to speaking or talking very late. उसने बोलना और बात करना बहुत ही लेट सीखा, एट द एज ऑफ 2.5, लगभग जब वो 2.5 साल का हो गया। देन ही स्टार्टेड टू टॉकिंग एंड दैट वाज विद वेरी डिफिकल्टी, वो भी बड़ा मुश्किल से। एंड ही यूज्ड टू अटर एवरीथिंग ट्वाइस, एंड व्हेन ही स्टार्टेड टू टॉक देन ही अटर एवरीथिंग ट्वाइस, हर चीज को 2 बार रिपीट करके ऐसे बोलता था। एंड देयर इज अ इंसिडेंट बिहाइंड द लर्निंग ऑफ हिज टॉकिंग। ने बोलना कैसे सीखा, उसके पीछे एक स्टोरी आपकी बुक में दी हुई है कि एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, अचानक से एक दिन जब डिनर का टाइम था तो डिनर टेबल पे उसने अचानक से उसने अपनी साइलेंस को तोड़ा। कैसे कहा, क्या कहा उसने, द सूप इज टू हॉट। उसने कहा कि सूप बहुत गर्म है। एंड हिज पेरेंट्स ग्रेटली सरप्राइज्ड, उसके पेरेंट्स को बहुत ही सरप्राइज हुआ। एंड दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, आपने अभी तक कोई भी एक शब्द क्यों नहीं बोला। देन ही रिप्लाइड, उसने क्या आंसर दिया पता है, उसने कहा, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सब कुछ सही चल रहा था, अब तक सब कुछ अप टू ऑर्डर था, इसलिए मैंने अब तक नहीं बोला। दैट वाज हिज आंसर। तो ये थी स्टोरी उसके बोलना सीखने के पीछे। नाउ चाइल्डहुड ऑफ द आइंस्टीन, आइंस्टीन का बचपन। ही लव्ड टू प्ले विथ मैकेनिकल टॉयज एंड प्रीफर्ड टू प्ले अलोन। उसको मैकेनिकल टॉयज से खेलना बहुत पसंद था और जनरली ही प्लेड अलोन, लगभग वो अकेला ही खेलता था। एंड प्लेइंग विद मैकेनिकल टॉयज एंड his interest in mechanical toys was so strong then when he saw his newborn sister, कि उसका मैकेनिकल टॉयज में, मैकेनिकल चीजों में उसका जो इंटरेस्ट था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि when he saw his newborn sister, जब उसने अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को देखा तो उसने क्या कहा, he said everything is fine but where was her wheels, इसके व्हील्स कहाँ हैं कि सब कुछ ठीक है पर इसके व्हील्स कहाँ हैं, मतलब एवरीथिंग he wanted मैकेनिकल, वो सब कुछ मैकेनिकल चाहता था, सब कुछ मैकेनिकल, हर चीज में मैकेनिज्म देखता था। So it was great interest in mechanical. So always he loved to play with mechanical toys and used to play alone. Thus other children called him brother boring. And जो उसके friends थे, जो उसके fellows थे, उसको क्या बोलते थे, brother boring. Even his school headmaster was not happy with him, telling his father that Albert would never be successful, whatever career he took up. इवन उसके स्कूल के जो हेडमास्टर से, दैट वाज नॉट हैप्पी विथ हिम, वो भी उससे ज़्यादा खुश नहीं थे। ही सेड टू हिज फादर, उसने बताया कि अल्बर्ट वुड नेवर बी सक्सेसफुल, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वॉट एवर कैरियर ही टुक अप, वो कोई भी कैरियर चूज कर लेगा बट ही वुड नेवर बी सक्सेसफुल। हिज मदर मेड हिम लर्न हाउ टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 years, बट उसकी मदर ने उसको सिखाया क्या, वायलिन प्ले करना
at the age of 6 years. जब वो 6 ईयर का था तब उसकी मदर ने उसको वायलिन प्ले करना सिखाया. He later on became a talented amateur violinist, और बाद में वो एक बहुत ही फेमस टैलेंटेड, amateur मीन नॉन प्रोफेशनल, मतलब अपने शौक से वो वायलिन प्ले करता था, बट became a talented violinist, एक टैलेंटेड वायलिनिस्ट बन गया. Now education of Einstein. When Einstein's parents shifted to Milan, they allowed him to continue school in Munich. But he left the high school at the age of 15. जब उसके पेरेंट्स ने मिलान के लिए मूव किया, वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने उसको पढ़ने के लिए मुनिक का जो स्कूल था वहीं पे छोड़ दिया कि आप अपने स्टडी यहीं पे कंटिन्यू करो. बट ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15. उसने 15 की एज में स्कूल छोड़ दिया. वाई? बिकॉज ही फेल्ट अनईजी विद द एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस ऑफ द स्कूल. देयर वाज एक्सट्रीम डिसिप्लिन, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था वहाँ पे. सो he felt uneasy and left the school. He was extraordinary in mathematics and interested in physics, so he continued his studies at the University of Zurich. वो मैथ्स में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे और फिजिक्स में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. That's why he continued his study at the University of Zurich. In the University of Zurich, he met a Serbian girl, Mileva Maric. Serbian means सर्बिया की रहने वाली, जैसे इंडिया का रहने वाला इंडियन, वैसे ही सर्बिया का रहने वाला सर्बियन. He met a Serbian girl, Mileva Maric. उस लड़की का नाम था Mileva Maric, who was also an intellectual girl. She was also intellectual. They fell in love and ultimately married in January 1903. After Albert found a job on finishing his university studies. अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी पूरी करने के बाद जब उसको जॉब मिल गया तो उन्होंने 1903 में शादी कर ली. But their family life was not happy despite having 2 sons, and they finally get divorced in 1990. लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, फैमिली लाइफ थी, that was not happy and didn't successful. In spite having 2 sons, they divorced in 1919. हालांकि उनके 2 बेटे भी थे, उसके बाद भी उनकी फैमिली लाइफ थी वो सक्सेसफुल नहीं रही, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हुई. That's why they divorced in 1919. उन्होंने 1919 में डिवोर्स ले लिया. आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सिद्धांत दिया वो इसमें है. Einstein finally secured a job as a technical expert in the patent office in Bonn. Finally उसको एक जॉब मिला टेक्निकल एक्सपर्ट का, कहाँ पे? पेटेंट ऑफिस इन Bonn. पेटेंट ऑफिस कौन से होते हैं? पेटेंट ऑफिस मीन्स a document which gives the right of an invention or an inventor. जो किसी इन्वेंशन को या किसी इन्वेंटर को राइट देते हैं, राइटफुली उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ इसका सही है, और वो उसको एग्जामिन करते हैं, उसके इन्वेंशन को एग्जामिन करते हैं, जज करते हैं. तो उस वाले ऑफिस में उसको टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब मिल गया. वेयर ही असेस्ड मींस एग्जामिन, चेक करना. वेयर ही असेस्ड अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जहाँ पे वो बाकी लोगों के इन्वेंशंस को एग्जामिन करता था, चेक करता था. साइड बाय साइड ही कंटिन्यूड डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज सीक्रेटली. But side by side, he was the. Whose mic is on, बेटा? किसी का माइक ऑन है? Okay. He continued developing his own ideas secretly, side by side. But side में वो अपने खुद के आइडियाज को भी continually develop कर रहा था. He published his special theory of relativity in 1905, according to which क्या था इस theory of relativity में? Time and distance are not absolute. They are not complete by their own. अपने आप में complete नहीं है. He derived the world's most famous formula describing the relationship between mass and energy. और उसी के बेस पे उसने वर्ड का एक फेमस फॉर्मूला है वो ऑब्टेन किया, डिस्कवर किया.
क्या था उसमें, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज E इक्वल टू mc स्क्वायर. In this formula, in this mathematical equation, E stands for energy, m for mass, and c for the speed of light in a vacuum. Vacuum means निर्वात, जिसमें बिल्कुल भी हवा नहीं रहती है. That is about 3 lakh kilometer per second. So this was the theory of relativity. Now, general theory of relativity. वो थी special theory of relativity. Now, the general theory of relativity. In 1915, Einstein published his general theory of relativity. The solar eclipse of the sun proved his theory as correct. Solar eclipse. Solar eclipse क्या होते हैं? ग्रहण, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बोलते हैं ना, दैट इज. तो सूर्य ग्रहण ने उसकी थ्योरी को क्या कर दिया, प्रूव राइट, प्रूव करेक्ट. सूर्य ग्रहण ने उसकी जो थ्योरी थी उसको करेक्ट प्रूव कर दिया. नाउ ही बिकेम फेमस as his work was considered a scientific revolution, and this time he became famous in the whole world, and his work was considered as a scientific revolution. For this and his other achievements, he received the Nobel Prize in Physics in 1921. और उसको इस थ्योरी के लिए और बाकी जो उसके अचीवमेंट्स थे उन सब के लिए उसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला. कौन से ईयर में, 1921 में. आइंस्टीन्स वर्क फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. उसने पीस और डेमोक्रेसी के लिए भी थ्रू आउट द लाइफ वर्क किया था. When the Nazis came to power in Germany at around 1933, ये 1933 के आसपास की बात है. When the Nazis came to power in Germany, जर्मनी में जब नाजीज का पावर बढ़ गया था, Einstein emigrated to the US. Then he moved away to US. When the world scientists came to know that Germany had developed nuclear fusion. Nuclear fusion means एक ऐसी न्यूक्लियर पावर जिसमें जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट होकर के और ज्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड होता चला जाता, स्प्लिट होता जाता है, और आगे से आगे एनर्जी है वो न्यूक्लियस में बढ़ती चली जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका हम उससे कर सकते हैं. They became afraid that the Nazis could build and use an atomic bomb. तो जो वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे वो डर गए. They thought that Nazis could build an atomic bomb and they can use the atomic bomb. Einstein was persuaded by his colleague. One of his colleague persuade him. एक उसके कलीग ने उसको persuade किया, उसको कन्विंस किया to write a letter to Franklin D. Roosevelt. कौन था ये? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. उसके कलीग ने उसको कन्विंस किया कि तुम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को एक लेटर लिखो. तो उसने एक लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939 को उसने एक लेटर लिखा. और उस लेटर में उसने क्या लिखा, इन विच ही वॉर्न, जिसमें उसने उसको वॉर्न किया था, थ्रेटन किया था, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट. अगर इस तरह का एक सिंगल बॉम्ब भी पोर्ट में एक्सप्लोड किया जाता है, पोर्ट में अगर उसका धमाका किया जाता है, माइट डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट एंड सराउंडिंग टेरिटरी. तो पूरे पोर्ट के साथ साथ सराउंडिंग एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको भी नष्ट कर सकता है. तो ये उसने उस लेटर में उसको वॉर्न किया था. और उस लेटर में जो उसने लिखा, उसने क्या किया, दिस मेड द अमेरिकन्स to develop their own atomic bomb in a secret project and use it against Japan. और उस लेटर का ये इफेक्ट हुआ कि उसने अमेरिकन्स को एक बॉम्ब बनाने के लिए, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए प्रोत्साहित कर दिया. एंड दे मेड अ बॉम्ब इन देयर सीक्रेट प्रोजेक्ट एंड दे डिसाइडेड टू यूज इट अगेंस्ट जापान. उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसको जापान के अगेंस्ट यूज करेंगे. In the end of the Second World War, in 1945, it was dropped on the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki on 6 August and 9 August respectively. और वही बॉम्ब 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी, जो
जापान की जो दो बहुत बड़े सिटीज थे उन पे गिरा दिए गए एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉय इन द सिटीज, और उन सिटीज में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। इतना भयंकर डिस्ट्रक्शन उस टाइम हुआ था कि सब कुछ वहाँ पे तहस नहस हो गया। Einstein was shocked by the extent of destruction caused by these bombs, and Einstein was shocked, greatly shocked, उसको बहुत झटका लगा, बहुत ही दुखी हुए वो, by the extent of destruction, जब उसने डिस्ट्रक्शन की सीमा देखी, मतलब उसको देखा कि किस हद तक डिस्ट्रक्शन हुआ है caused by these bombs, and wrote an open letter to the United Nations to stop the arms built up by forming a world government. उस डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद ग्रेटली शॉक, ही वाज ग्रेटली शॉक एंड ही रोट अ लेटर टू यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा टू स्टॉप द मेक द वेपन्स, स्टॉप दीज आर्म्स, स्टॉप दीज वेपन्स, टू बिल्ड देम एंड फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति लाओ, रोको इन वेपन्स बनाने को। एंड आइंस्टीन कंटिन्यूड कैंपेनिंग, कैंपेन जानते हो, अभियान चलाना, प्रचार प्रसार करना। Einstein continued campaigning for an end to the arm built up and used his popularity to campaign for peace and democracy during the next 10 years. और अगले 10 वर्षों तक उसने अपनी जो पॉपुलैरिटी थी, वो जितना फेमस था, अपने पॉपुलैरिटी का यूज उसने किसमें किया, एक कैंपेन चलाने में कि पूरे वर्ल्ड में पीस और डेमोक्रेसी की स्थापना हो सके, पूरे वर्ल्ड में पीस आ सके, शांति आ सके, डेमोक्रेसी आ सके। तो उसने एक कैंपेन चलाया और अगले 10 साल तक उसने ऐसा किया, जब तक कि जो वेपन्स थे वो बनाने स्टॉप नहीं हुए, तब तक उसने ऐसा किया। एंड व्हेन ही वाज डाइड in 1955 at the age of 76, he was known and celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. When he was dead in 1955, unfortunately, at the age of 76 की जब उसकी एज थी, then he was dead, and he was known and celebrated as a visionary. Visionary मतलब थिंकिंग वेल-बीइंग अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर के बारे में एक वाइजेस्ट जो थिंकिंग रखता हो, उसको एक विजनरी के रूप में सेलिब्रेट किया गया, एंड द वर्ल्ड सिटीजन, और उसको पूरे वर्ल्ड का सिटीजन डिक्लेयर किया गया, एंड मच एज साइंटिफिक जीनियस, और उसको एक साइंटिफिक जीनियस माना गया। तो दिस वाज द लेसन। ओके, थैंक यू। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर।